Okay, guys. So good morning, everyone. What we are going to do today is reading two. This is a book by Professor Vijay Joshi, India's Long Road Towards Prosperity, and we are going to do the second chapter of it, which basically talks about the era between 1947 till 2015 when the book was released, and it's called Toward the Horizon. Okay, so let's this is the book. This is Professor Vijay Joshi. He teaches at the Manchester University. The last what I had seen his profile, and then we have again the same diagram, that the same flow chart that we had seen in the previous class as well. Now in this diagram we had talked about the Hindu rate of growth. तो हमने ये वाला पीरियड के बारे में ऑलरेडी बात किया हुआ है कि this is your Hindu rate of growth का period, and this reading also talks about this Hindu rate of growth का period. But remember guys, this reading also is not just an economic discourse, this reading is also a political discourse. So you will also get to know that what happened in this period economically as well as politically. So today our focus in today's lecture, our focus will be on the economics and politics of this period. And this reading talks about what India needs to do to be a prosperous nation. तो वो सारी चीज़ें पहले हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का और हमारी जो इंस्टेबिलिटी थी उस पूरे पीरियड को एक्सप्लेन करते हैं. एंड देन ही मूव्स ऑन टू द 80s पीरियड, द reforms that were initiated by Rajiv Gandhi and then by Manmohan Singh, and then the political unstable period of mid 1990s, and then you have the period after Manmohan Singh and the initial period of Prime Minister Modi. तो ये पूरा पीरियड के बारे में बात करते हैं. तो ये बिल्कुल यहाँ तक 2015 तक ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पीरियड. सो नथिंग आफ्टर दिस इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर रीडिंग. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन. देन व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉस्पेरिटी, what we actually don't mean by prosperity is much more than just money. And it should not be कि आप डेट ले ले कि आप प्रॉस्पेर कर रहे हो, आप फिजिकल डेफिसिट्स बहुत ज़्यादा हाई रन कर रहे हो. सो जस्ट बिकॉज समवन बोरोज अ लॉट ऑफ मनी, that doesn't show prosperity. For example, if you see विजय माल्या ने क्या किया था. विजय माल्या ने खूब सारा पैसा बोरो कर लिया था. दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ विजय माल्या. खूब सारा पैसा बोरो कर लिया था, and he was throwing those lavish parties. So if you have seen India's bad billionaires, तो उसमें यही इन सब के बारे में यही है, they maintain a very very wealthy lifestyle, but that all of that lifestyle was on the basis of public money, taxpayers money. तो prosperity is not just about having money or other things. And prosperity also does not mean that बहुत कम लोगों के पास बहुत सब कुछ हो and बहुत जो टॉप elite हो उनके पास बहुत सारी इनकम हो. So we will talk about a reading of inequality today. So this kind of a cartoon also shows about prosperity, and ये जो हुआ है prosperity, ये इंडिया में और ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गई है इस तरीके की प्रॉस्पेरिटी, वेयर द टॉप 1%, इफ़ यू सी टॉप 1% ऑफ इंडिया इज कंट्रोलिंग अराउंड 21% ऑफ इंडियाज रिसोर्सेज. ये टॉप 1% ऑफ इंडिया जो लोग हैं इंडिया में, वो 21% इनकम ऑफ द इंटायर कंट्री ओन करते हैं. ठीक है. सो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ बिलियनियर्स, अल्ट्रा बिलियनियर्स. तो एंड इफ़ यू सी इन दी पीरियड ऑफ पैंडमिक एज वेल, अगर हम पैंडमिक के पीरियड में भी देखें तो यू वुड सी दैट द नंबर ऑफ बिलियनियर्स दैट वी हैव एडेड टू द वर्ल्ड, द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स दैट वी हैव एडेड टू द वर्ल्ड इज ह्यूज. In fact, we added the maximum number of unicorns. Unicorn, I guess, guys, you understand what a unicorn is? Unicorn समझते हो सारे? क्या समझते हो यूनिकॉर्न से? What is a unicorn, guys? Not the mythical animal. यूनिकॉर्न गाइज, यूनिकॉर्न होता है वो कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाती है, उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं. इनफैक्ट मैंने कल एक आर्टिकल शेयर किया था, प्लीज़ डू रीड दैट आर्टिकल. इट्स एन आर्टिकल बाय डी सुब्बाराव. किसी ने पढ़ा वो आर्टिकल?
मैंने कल दोपहर को एक शेयर किया था आर्टिकल एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट्स पे, डू रीड दैट आर्टिकल, इकोनॉमिक टाइम्स का आई थिंक वो आर्टिकल है, आई विल शेयर द लिंक हेयर एज वेल. So this is an article by D. Subbarao which talks about that how we have how in Indian economy inequality has increased over the last 1 odd year, and it's primarily because of the fact कि हमारे यहाँ जो टॉप अर्नर्स हैं वो और भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, उनके पास इनकम सोर्सेज जो हैं वो बहुत कम रह गए हैं. हाँ, उनके पास इनकम सोर्सेज जो हैं वो बहुत कम रह गए हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड वालों लोगों के पास. ठीक है, दीज आर द गाइज हु आर सफरिंग, वेयर एज ये जो है ये तो इन एनी केस इन्होंने तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके और ज़्यादा पैसा बनाया. सो इफ़ यू सी a lot of कंपनीज कोविड के टाइम पे डेट फ्री हो गई हैं. यू सी रिलायंस का एग्जांपल ले लो. रिलायंस काफ़ी ज़्यादा डेटेड कंपनी थी बिफोर दी कोविड, एंड उसने बिल्कुल अपना डेट ख़त्म कर लिया है. अपना कुछ स्टेक जियो में बेच के, गूगल को थोड़ा सा स्टेक बेच दिया, थोड़ा सा फेसबुक को बेच दिया, तो इस तरीके से डेट फ्री हो गई. और ये टेक्नोलॉजिकल कंपनीज और ज़्यादा बड़ी, बाईजूस को देख लो, पिछले 1 साल में बाईजूस ने क्या क्या खरीद लिया है. So that shows कि India's top 1% people or the billionaires are doing really well, whereas inequality और जो bottom of the pyramid में, even in the middle of the pyramid, they are struggling because of COVID, क्योंकि इनके पास तो जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है. तो इंडिया के अंदर इस तरीके की इनइक्वालिटी बढ़ रही है, पॉवर्टी बहुत बढ़ गई है पिछले 1-1.5 साल में बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड. ऑल ऑफ दिस वी विल सी थ्रू अ कपल ऑफ रीडिंग्स दैट वी आर गोइंग टू गो थ्रू इन आवर कोर्स. ठीक है, एंड द पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इज नॉट थ्रू स्पेंडिंग, इज नॉट जस्ट थ्रू स्पेंडिंग. You also have to see how equitous are you going to spend. ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मनी होगा वो कैसे होगा, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. This is something that I made last year, but इसी को in one of the PPTs the student had converted into a format, a digital format. ठीक है, so we are primarily going to talk about 2 periods in this particular reading. और वो 2 पीरियड किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं, ये एक पीरियड लेंगे, इसको हम होमोजेनस एक पीरियड लेंगे. ठीक है, ये पूरा एक पीरियड लेंगे हम, एंड उसके बाद ये जो दूसरा वाला है इसको हम पूरा एक पीरियड लेंगे. ठीक है, 80s ऑनवर्ड जो भी हो रहा है उसको एक पीरियड लेंगे. तो ये हमारा बेसिकली डिवाइडिंग लाइन हो जाएगा. आज हम इस वाले पीरियड के बारे में पूरा बात करेंगे. Now we have already talked a lot about the Nehruvian period in the previous reading. और हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में. We said that इस पूरे पीरियड में नेहरू was the prime minister. फेबियन सोशलिज्म की तरफ बढ़े थे. हमने थोड़ा बहुत प्रोग्रेस एग्रीकल्चर में करा था, बट इनका इंटेंशन जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए था वो नेगेटिव नहीं था, एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन का था. एंड हमने, अगर हम अपने पास से कंपेयर करें बिफोर इंडिपेंडेंस, तो हमने बहुत अच्छा ग्रोथ भी अचीव किया. लेट्स सी दैट एज वेल. इफ यू सी दिस यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. ये देखो, हमने देखा था ना कि 1% का ग्रोथ रेट है. ये हमने पहले भी रीडिंग में बात करी थी. 1% का ग्रोथ रेट है हमारा बिटवीन 1900 टू 1950. और उसके बाद इफ़ यू सी 50 to 64 की अगर ये पीरियड के बारे में बात करो, इनफैक्ट ये नेक्स्ट वाले में भी शायद से हो, या 51 से लेके 64 तक का अगर आप पीरियड देखो. सो इफ़ यू सी द पीरियड बिटवीन 1964 टू 1950 टू 1964, तो ये आपको दिखाई देता है कि ये 3.9% का ग्रोथ रेट है. एंड उसके बाद 65 से लेके 80 तक का पीरियड देखो, एकदम से आपकी ग्रोथ रेट 3% की हो जाती है. ठीक है, और इसके बीच में आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बहुत तेज़ है. सो ये जो मेजर फॉल है ये इस पीरियड में. और इसी पीरियड को रिमेंबर, व्हाट डू वी से गाइस, इस पूरे पीरियड के एवरेज ग्रोथ रेट को हम इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे पीरियड के ग्रोथ रेट को क्या बोलते हैं हम गाइस? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड एज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. ठीक है, कॉइन्ड बाय के.एन. राज, विच वाज बेसिकली कि इंडिया का मैक्सिमम लिमिट ग्रोथ का क्या होगा, वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ होगा. नाउ इफ़ वी सी दी नेहरूवियन एरा, तो नेहरूवियन एरा का हमें दिख गया कि जो ग्रोथ रेट है बॉस हमारा 3.9% का ग्रोथ रेट है. इन्होंने फोकस किस चीज़ पे किया था? इन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया था. मॉडल कौन सा था? नेहरू महालनोबिस मॉडल था.
हेवी इंडस्ट्रीज का मॉडल था, इट वाज बेस्ड ऑन फेल्डमैन्स मॉडल, एंड इट वाज आल्सो समथिंग लाइक योर हैरोडोमर मॉडल, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे थे। और इन्वेस्टमेंट को कहाँ चैनलाइज कर रहे थे? इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज कर रहे थे इन दोज इंडस्ट्रीज जहाँ पर आपका बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बेसिकली वो इंडस्ट्रीज जिनकी लिंकेजेस सबसे ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा स्प्रेड होगा ग्रोथ, आप वो इंडस्ट्रीज़ को टारगेट कर रहे थे। तो यू टारगेटेड हैवी इंडस्ट्रीज, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कैपिटल सेक्टर, आपने एग्रीकल्चर पे भी थोड़ा फोकस किया था, एंड आपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को यू हैड पुट देम ऑन द कमांडिंग हाइट्स बिकॉज यू वांटेड IEBR फ्रॉम देम। आपके पास प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा नहीं था, तो आपने सोचा कि हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बढ़ावा दे देते हैं, और वो जो प्रॉफिट कमाएंगी उससे हम नेशनल डेवलपमेंट कर लेंगे, अपना नेशनल डेवलपमेंट का गोल अचीव करेंगे। तो ये बेसिकली अप्रोच थे हमारा। और पॉवर्टी रिडक्शन का जो हमारा अप्रोच था वो ट्रिकल डाउन था, कि बेसिकली पहले आप क्या कह रहे हो, पहले केक का साइज़ अगर छोटा है, अगर केक छोटा है तो जो पाई होगा वो भी छोटा होगा। तो आपने इसकी बजाय आपने सोचा कि हम केक को ही बड़ा कर लें, ओवरऑल नेशनल इनकम ही बड़ा कर लें, सो दैट जो सबसे नीचे वाले लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है वो भी, उसका पाई साइज भी बड़ा हो जाए। ठीक है, सो दिस इज द अप्रोच दैट यू हैड फॉर poverty reduction. And what we also saw was that in this period we had a conspicuous absence of any investment or major investment in health and education sector. ठीक है, हमने ये इसके बारे में बात करी थी, प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था, एंड perhaps the reason given was that these are state subjects, these are not your union subjects, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत नहीं थी। बट वी नो दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ कि वी वर नॉट एबल टू अप्लाई द एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल। ठीक है, एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल वही कहता है कि ग्रोथ ऑफ आइडियाज़। तो अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर लेते हैं एजुकेशन और हेल्थ में, तो हम भी आज की डेट में हो सकता है सिंगापुर जैसी कंट्री बन जाते हैं, या एटलीस्ट चाइना जैसे अप्रोच एटलीस्ट कर लेते हैं। तो हमने ये किसी भी चीज़ में इनमें इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है, एंड वी विल टॉक मोर अबाउट द हेल्थ सेक्टर, नॉट पर से एजुकेशन की एक रीडिंग होती थी वो इस बार शायद से हटा दी है, बट हेल्थ के ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, मेल न्यूट्रिशन के बारे में। एंड आई विल ऑल्सो लिंक इट टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ठीक है, हमारी जो रीडिंग है वो 2015 की रीडिंग है। वन ऑफ आवर प्रोफेसर्स हैज टाइटल्ड दैट रीडिंग, प्रोफेसर JV मीनाक्षी फ्रॉम दिल्ली स्कूल। तो शी इज़ ऑल्सो द इंचार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो उनकी एक रीडिंग है, बट आई थिंक वो 2015 की रीडिंग है, जिसके अंदर जो डेटा होगा वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 तक का डेटा होगा, 5 का नहीं होगा। सो वी विल अपडेट इट विद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, एंड यू विल बी रिक्वायर्ड गाइज वेदर वट एवर एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर, यू कैन नॉट राइट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का सिर्फ डेटा। अगर आप 5 का डेटा लिखोगे तभी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी रिलीज हो गया है। सिमिलरली जब हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे तो आई थिंक 4 दिन पहले क्या कहते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019-2020 का डेटा भी रिलीज हो गया। सो यू नीड टू अपडेट योर सेल्फ वेन एवर यू आर राइटिंग योर आंसर्स। ठीक है, तो जब हम ज्ञान होजे थॉमस की रीडिंग करेंगे, हु वॉज योर वन ऑफ योर गेस्ट इन योर इको मंत्रा फेस्ट, तो उन्हीं की एक रीडिंग है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, बट अगेन वी हैव टू अपडेट दैट रीडिंग विद द करंट डेटा दैट वी हैव ऑन आवर हैंड। देन उसके भी मैंने आपको 1-2 आर्टिकल्स भेजे, वी विल डिस्कस दोज आर्टिकल्स व्हेन वी आर गोइंग टू रीड दैट पर्टिकुलर रीडिंग। ठीक है, सो कीप अपडेटिंग गाइज, दोज ऑफ यू हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल्स, टेक योर नोट्स, बट मेक श्योर दैट यू कीप अपडेटिंग देम विद द न्यू डेटा दैट कम। तो स्ट्रक्चर बन जाएगा, बट स्ट्रक्चर बनने के बाद, स्ट्रक्चर तो आप सपोज आप 2 साल बाद पेपर में अपीयर कर रहे हो, तो यू नीड टू अपडेट ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन एंड ऑल ऑफ दैट एनालिसिस। ठीक है, तो ये पार्ट नहीं चेंज होगा, बट आगे का पार्ट चेंज हो चुका होगा। चलो, देन कम्स द 1964 से 1980 तक का पीरियड। दिस इज द पीरियड इन विच देयर वर मेजरली 4 प्राइम मिनिस्टर्स, starting with Lal Bahadur Shastri ji, then Indira Gandhi, from 1966 to 1977. Then you have Morarji Desai's period of 2 years, and then you have Charan Singh's period of 1 year. ठीक है, तो जिसको हम जनता पार्टी गवर्नमेंट बोलते हैं। तो
इस पीरियड के अंदर क्या हुआ था, और ये हम पहली बार इस पीरियड के बारे में बात करें क्योंकि हमने पिछले वाली रीडिंग के अंदर इस पीरियड के बारे में डिटेल में बात करी थी, इस पीरियड में बात नहीं करी थी. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल इन दिस. नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द ग्रोथ इन दिस पीरियड वाज 2.9%. ये हमने कहाँ देखा? दिस इज वी हैव पिक्ड इट अप फ्रॉम हियर. ये देखो 1965 से लेके 1980 तक के बीच में जो ग्रोथ रेट है वो 2.9% का ग्रोथ रेट है. ठीक है. Now if you see the period of लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके पीरियड में काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट इकोनॉमी थी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स भी टर्बुलेंट थे. क्यों? क्योंकि पहले हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हमें करना पड़ा क्योंकि हमारी कंट्री में ड्रॉट आ गया था. तो और हमारी फूड सेवेरिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो चुकी थी. देयर वाज दिस इंसिडेंट गाइज, आई वांट यू टू रीड अबाउट इट. PL480, आज जाके सर्च करना है इसके बारे में. PL480. इस इंसिडेंट में डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में क्या हुआ. आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल समरी ऑफ इट. इस इंसिडेंट में क्या हुआ था कि India was going through a drought period in the early 60s and we wanted supplies of food grain. तो US वो फूड, क्योंकि US is a huge producer of wheat. ठीक है. US की क्लाइमेट के हिसाब से उसके नदर्न रीजन्स में बहुत ज़्यादा वीट उगता है. ठीक है. यू माइट हैव हर्ड अबाउट द टर्म प्रेरीज. ठीक है. जिनको थोड़ा ज्योग्राफी याद हो तो उनका वीट, प्रेरीज वाला जो वीट है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी होता है. तो वहाँ से हम वीट हमने मंगवाया एंड उन्होंने वो शिप लाके इंडियन ओशन में खड़ा कर दिया. एंड दे ट्राई टू आर्म ट्विस्ट आवर फॉरेन पॉलिसी. आवर फॉरेन पॉलिसी वाज परहैप्स अ लिटिल मोर टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन. एज यू कैन सी दैट हमारा जो प्लानिंग प्रोसेस है वो सोवियत यूनियन जैसा बन गया था. तो दे ट्राई टू आर्म ट्विस्ट आवर फॉरेन पॉलिसी एंड दिस वाज द एरा ऑफ कोल्ड वॉर. तो वी रियलाइज दैट कि बॉस ऐसा तो नहीं चल पाएगा कि हम अपना फूड के लिए भी हम इधर उधर वी आर आस्किंग फॉर अ बेगिंग बोल. एंड इवेंचुअली दे डंप द इंटायर फूड इन द इंडियन ओशन rather than giving it to us. So that incident basically shook the spirits of the Indian political dispensation that we cannot afford to be dependent on others, at least for our food needs. Therefore, we started the process of green revolution, and this green revolution process was initiated by LBS, and it was kind of a project that was started in the fields of Haryana and Punjab. ठीक है. Who is the father of green revolution, guys? Anyone? Any idea? MS Swaminathan is the father of Indian green revolution, not the world green revolution. Norman Borlaug. Yes, exactly. Norman Borlaug. He introduced what is called as high yielding varieties. ठीक है. जिनको हम बोलते हैं HYVs. High yielding varieties के wheat होता है. To give you a small input into what this exactly is, usually जो wheat होता है उसको काफ़ी टाइम लगता है. वो लॉन्ग, इतना लंबा सा, आपने अगर वो देखा हो, आपने मूवीज़ में देखा हो तो लंबा सा ऐसा करके कुछ wheat सा उगता है. बट what Norman Borlaug did in Mexico was इन्होंने इसको मॉडिफाई करके क्रॉस ब्रीड करके इसको, और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता था उसको भी बहुत टाइम लगता था इसको पूरे को उगने में. ठीक है. तो उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग करवाया इसको एंड ये शॉर्ट डॉर्फ वर्जन बना दिया इसका. डॉर्फ वर्जन बना दिया इस वीट का, और वो जल्दी से उग जाता था. ठीक है. जल्दी से प्रोड्यूस हो जाता था. तो जल्दी से उग जाएगा तो आप जल्दी से हार्वेस्ट कर पाओगे. ठीक है. और इसका जो आउटपुट होता था वो बहुत ज़्यादा होता था. बट द प्रॉब्लम वॉज कि अगर आपको ये HYV सीड्स यूज़ करने हैं तो ये वाटर इंटेंसिव है. इनको वाटर खूब चाहिए, इनको स्टैंडिंग वाटर चाहिए खूब सारा, और इनको पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, और इनको फर्टिलाइज़र भी खूब चाहिए. ठीक है. और ये जो हैं ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करेंगे, बड़े बड़े फील्ड्स में काम करेंगे, छोटे छोटे फील्ड्स में काम नहीं कर सकते. तो इसीलिए इस पूरे ग्रीन रेवोल्यूशन को हम पैकेज बोलते हैं. वी विल डील मोर ऑफ दिस इन दी 6th सेमेस्टर जब हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे. बट यू शुड नो कि ये पूरा पैकेज प्रोग्राम था कि हाई यील्ड वेराइटी के सीड्स होते थे, वाटर होना चाहिए, खूब इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, आपके पास फर्टिलाइजर्स होने चाहिए खूब सारे, आपके पास पेस्टिसाइड्स होना चाहिए, और आपके पास बड़ी लैंड होनी चाहिए इकोनॉमीज उसके. ये सारी चीज़ें अवेलेबल जो थी वो हरियाणा एंड पंजाब में थी. इसीलिए सबसे पहले ये पायलट प्रोग्राम्स वहाँ इंट्रोड्यूस हुए थे. हाउएवर
now we realize that while economically this was very good, ecologically this was not very good. क्यों? क्योंकि हमने वाटर फ्री करने के लिए क्या कर दिया, हमने हरियाणा एंड पंजाब के लोगों को बोला, स्पेशली पंजाब के लोगों की, बॉस आप अपना कुआं खोद लो ज़मीन में और फ्री में हम बिजली दे रहे हैं और पंप लगा लो और जितना मर्जी आपको पानी यूज़ करना उतना पानी यूज़ करो. तो इन्होंने ये वीट के लिए भी यूज़ किया. वीट तो फिर भी इतना वाटर इंटेंसिव नहीं है, राइस इज़ वेरी वाटर इंटेंसिव, तो इन्होंने राइस के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया. वीट तो चलो ठीक है आपका सर्दियों के मौसम में राबी क्रॉप है, बट खरीफ क्रॉप में ये लोग राइस उगाते हैं, बासमती राइस. तो जहाँ पर पूरा का पूरा जो आपका फील्ड होता है उसको फ्लड करना पड़ता है आपको, ठीक है, पानी से. अब इनके पास कोई ये वाटर अबंडेंट वो तो नहीं है इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल. तो ये बेसिकली पंप करके इन्होंने अपना वाटर लेवल पूरा का पूरा डिक्लाइन कर लिया है. एंड टू दैट एक्सटेंट कि इधर की सॉइल जो है, पूरे एरिया की जो सॉइल जो है वो कंटामिनेट हो चुकी है. एंड दैट इज़ वाई यू फाइंड द मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स in Haryana and Punjab now. So these are going to be in coming times, these are going to be the cancer capital of the country, these both states. तो वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने absolute destruction of environment कर दिया है, ठीक है. तो इसीलिए अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से इनको इन क्रॉप्स को हटाया जाए. और नॉट जस्ट दैट, फिर उसके बाद जब ये क्रॉप खत्म हो जाती है उसके बाद ये इसको बर्न कर देते हैं, इसको परेली बोलते हैं, ठीक है. तो जो रेजिड्यू होता है, फॉर एग्जांपल आपने ऊपर का ये काट दिया, ठीक है, ये राइस होगा ना, तो राइस का आपने ऊपर का ले लिया, बट नीचे का जो ये रूट में जो रह गया वो आपने नहीं काटा. तो इसको क्या करते हैं, इसको सुखा के इसमें सीधा आग लगा देते हैं ये लोग, रादर दैन इसको यूज़ कर लें. तो जब आग लगा देते हैं तो हमें अक्टूबर और नवंबर में डेलीआइट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ द इशू कि ये सारा इन्होंने स्टबल बर्न कर दिया, इसको स्टबल बोलते हैं, स्टबल बर्न कर दिया. नाउ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट कि गवर्नमेंट कह रही है कि अच्छा हम आपसे ये स्टबल खरीद लेंगे, आपको पैसा दे देंगे सो दैट आप इसको बर्न ना करो. You might have heard about all of this, right? Stubble burning, pareli, and the problem of water decline, water table decline in Haryana and Punjab. In fact, if you see the INSAT pictures, the satellite pictures of Haryana and Punjab, you will see that proper satellite pictures में वो राजस्थान जैसा ही दिखता है आपको, ठीक है. तो इसको बोलते हैं हम डेजर्टिफिकेशन, जोग्राफी में दिस इज कॉल्ड एज डेजर्टिफिकेशन. तो वी सी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेजर्टिफिकेशन और एक्सटेंशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन फ्रॉम राजस्थान टुवर्ड्स दीज रीजन्स. देन क्लियर गाइज यहाँ तक? एनी डाउट्स? Then you also had the incidents of war. In fact, Lal Bahadur Shastri ji was actually either assassinated or basically died of natural causes in Tashkent. ठीक है, तो ताशकंद अग्रीमेंट के लिए गए थे पाकिस्तान के साथ, अग्रीमेंट कराने के लिए इन अर्स्टवाइल USSR. तो वहाँ पर यू रीड अबाउट द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एंड यू रीड अबाउट एंड यू कैन वॉच दिस मूवी एज वेल विच टॉक्स अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन ताशकंद. देन सो ये पूरा का पूरा जो पीरियड था ये बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट पीरियड था इंडियन इकोनॉमी के लिए. एंड BOP का भी एक बहुत मेजर क्राइसिस चल रहा था. वी आर ऑल्सो एक्चुअली यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट वी ऑल्सो टुक अ BOP डिवैल्यूएशन इन 1966. ठीक है, एक हमने 1947 में किया, एक 1966 में किया, फिर 1991 एंड 1993, ये 4 मेजर डिवैल्यूएशंस की हमने. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंदिरा गांधी, तो पहली बात तो ये इंदिरा गांधी सीधा नहीं आ गई थी, यहाँ पर लड़ाई हो रही थी कांग्रेस के अंदर. ठीक है, तो इनका जो फैक्शन था इंदिरा गांधी का उसको बोलते थे कांग्रेस आई. ठीक है, एक कांग्रेस ओ था और एक कांग्रेस आई था पॉलिटिकली. इफ यू वांट टू रीड अबाउट मोर ऑफ द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, देयर आर 2 बुक्स. देयर इज वन बुक कॉल्ड बिपिन चंद्रा. यू शुड, हाँ, एक बुक है, you will need to read this book if you're going for civils as well. ठीक है, बिपिन चंद्रा, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. और एक है इंडिया आफ्टर गांधी. आई थिंक इंडिया आफ्टर गांधी ही है, रामचंद्र गुहा. ये इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है.
ठीक है, तो ये 2 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन स्टार्ट, इनफैक्ट यू कैन स्टार्ट रीडिंग देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम यू कैन स्टार्ट रीडिंग. तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया अबाउट हाउ इंडियाज ओवरऑल डेवलपमेंट वाज और पॉलिटिकली कैसे हम वो थे. एंड अगर ये ज़्यादा लग रहा है तो आप कोई एनसीईआरटी उठा के देख लो कि 11th-12th की, उसमें भी ये पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव है. बट अगेन वो नैरेटिव इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होगा जितना बिपिन चंद्रा एंड प्रॉब्ली इंडिया आफ्टर गांधी में. Now, if we see Indira Gandhi's period, तो Indira Gandhi fought the kind of factionism that happened after the death of LBS, and then she came to power in 1966 through her party, which is Congress I. Then she took certain reforms, and at the same point of time she was expecting major reforms, major help from US. तो ये जब हेल्प यूएस से नहीं आई तो शी वाज एक्सपेक्टिंग कि यूएस हमें कुछ हेल्प करेगा इस पीरियड के अंदर. स्पेशली हमारा जो बीओपी क्राइसिस था उसको, उसके बाद 1966 के बाद हमें बीओपी क्राइसिस के बाद हमें हेल्प चाहिए थी एटलीस्ट मॉनेटरली. तो वो हेल्प यूएस से हमें नहीं आई. ठीक है, एंड बिकॉज वो यूएस से हेल्प नहीं आई, इट पुश्ड मिसेस गांधी टूवर्ड्स द लेफ्टिज्म और टूवर्ड्स द यूएसएसआर ब्लॉक. तो ये जो इनको बिट्रेयल सा मिला यूएस से, द स्नबिंग दैट वी गॉट फ्रॉम यूएस, दैट एक्चुअली ऑल्दो हमारा जो पॉलिसी मैकेनिज्म था वो वैसे भी यूएसएसआर जैसा दिख रहा था, बट ये जो था ये जो है उसने और ज़्यादा पुश कर दिया इंडिया को टूवर्ड्स द यूएसएसआर ब्लॉक, टूवर्ड्स दैट द सोवियत ब्लॉक इन द कोल्ड वॉर. तो उसकी वजह से शी अडॉप्टेड लेफ्ट वाली पॉलिसीज की अगेंस्ट स्टेट ओनरशिप. सो इफ़ यू सी 1969 में व्हाट शी डिड वाज, इन्होंने कई बैंक्स उठा के उन्होंने उसको नेशनलाइज कर दिया. नेशनलाइज मतलब बेसिकली क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ पहले प्राइवेट थी, अब उसको आपने कहा कि नहीं अब ये सरकार की है. ऐसे इन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को भी बोल दिया और कोल माइंस को भी कर दिया. तो बहुत सारा नेशनलाइजेशन किया. तो जहाँ पर भी ये सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स आती हैं वो सबसे पहले नेशनलाइज कर देती हैं चीज़ों को. वो कहती हैं कि हम इनइक्वालिटी कम करेंगे और हम गरीबों के हाथ में रिसोर्सेज डालेंगे और सरकार सब कुछ संभालेगी. ठीक है, सो इन्होंने वो पॉपुलिज्म एंड लेफ्ट अप्रोच अपनानी शुरू कर दी. एंड वहाँ से इंडिया की और पब्लिक ऑलरेडी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस था उनके पास कोई कंपटीशन नहीं था, वो ऑलरेडी सबसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी. अब आपने पूरा प्राइवेट सेक्टर को भी ख़त्म करना शुरू कर दिया. वी विल टॉक अबाउट अ कपल ऑफ एक्ट्स विच इज़ MRTP एंड फेरा एक्ट. ठीक है, देयर इज वन एक्ट कॉल्ड MRTP. Just note it down, guys. We will talk more about it. We might not be able to talk about it, but still you should know. Write down about this act. MRTP. Monopolies and Restricted Trade Practices Act 1967. And then you have an act called FERA, Foreign Exchange Regulatory Act 1973. ठीक है, तो बेसिकली ये एक्ट, स्पेशली ये जो एक्ट था ये कह रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक शू बनाने की फैक्ट्री है, तो अगर मैं 100 जूते पर डे बनाता हूँ या पर मंथ बनाता हूँ 3000 जूते, तो अगर मुझे 4000 जूते बनाने हैं तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेने की ज़रूरत है कि मैं अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड कर लूँ. ये बेसिकली मोनोपोलीज को रिस्ट्रिक्ट करता था, ये कंपटीशन को बढ़ाता था. और यहीं पे आपने एक और चीज़ शुरू करी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व करने शुरू कर दिए कुछ प्रोडक्ट्स. सो इस पूरे पीरियड में रिजर्वेशन भी शुरू हो गया. रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर स्मॉल स्केल, SSIs बोलते थे, आज की डेट में उनको MSMEs बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि साबुन जो है, सोप जो है, या आपने कहा बकेट जो है, बाल्टी जिससे हम नहाते हैं, ये सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बनाएंगी. ठीक है, बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं बना पाएंगी ये सारी चीज़ें. तो आप बेसिकली पूरी मार्केट के अंदर आप इनएफिशिएंसीज ला रहे थे, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स ऐसे हो गए थे जो छोटी कंपनीज भी नहीं बना रही थी और बड़ी कंपनीज तो बना ही नहीं सकती थी. तो बेसिकली हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे थे प्रोडक्ट्स. और यहाँ पर आपने बेसिकली वो जो हम कहते हैं ना कि इनवर्ड लुकिंग हम पूरी इकोनॉमी बनानी शुरू कर दी थी. तो हमने कहा कि हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, कि हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे,
हम उसको इंडिया के अंदर ही बनाएंगे, बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ ही नहीं था उस चीज़ को बनाने का, क्योंकि हमने ना तो एजुकेशन में इन्वेस्ट किया था, ना हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया था, बट हमने मोटो बना लिया. सो दिस वॉज द इनिशियल वर्जन ऑफ आत्मनिर्भर भारत. सो आत्मनिर्भर भारत इज काइंड ऑफ एन ISI स्ट्रैटेजी विद अ ट्विस्ट, बट दिस वॉज द ओरिजिनल आत्मनिर्भर भारत दैट वॉज देयर. एंड बट ये बहुत ज़्यादा और रिस्ट्रिक्टिव भी था, क्योंकि यहाँ पर आप इसके साथ में एक्सपोर्ट पेसिमिज्म की पॉलिसी भी फॉलो करते थे. एक्सपोर्ट पेसिमिज्म, आप इधर एक्सपोर्ट पेसिमिज्म की भी पॉलिसी फॉलो कर रहे थे इस पीरियड में. एक्सपोर्ट पेसिमिज्म का मतलब ये होता है कि आप एक्सपोर्ट उतना ही करोगे जितना आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत है. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट. कि सपोज मुझे $100 का कुछ सामान खरीदना है बाहर से, ठीक है, $100 का मुझे इंडिया में सामान नहीं बनता, तो मुझे ये कंट्री को सामान खरीदना पड़ेगा. तो आप बेसिकली कोशिश करोगे कि मेरी कंट्री से सिर्फ $100 का ही एक्सपोर्ट हो जाए, सो दैट ये बैलेंस आउट हो जाए बस. तो आपका ट्रेड का जो वो था, मेजर था कि पहले तो ये इंपोर्ट को ही मिनिमाइज करो, पर जितना इंपोर्ट आपको करना है उतना ही आप एक्सपोर्ट करो टू मिनिमाइज टू बेसिकली टेक केयर ऑफ दैट एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. तो आपने अपने आप को वर्ल्ड वाइड आपने अपने आप को एक काइंड ऑफ कोकून में बांध लिया कि यार हम अपने अपने अंदर ही रहेंगे. सो दैट वाज द आइसोलेशनिस्ट काइंड ऑफ फिलॉसफी दैट वी अडॉप्टेड. और आप यू वर सीइंग प्राइवेट सेक्टर एज समथिंग रॉन्ग, यू वर सीइंग वेल्दी पीपल एज समथिंग इमोरल. तो इस तरीके की हमने एक फिलॉसफी उठा के बना ली, डिस्पाइट द फैक्ट कि चलो ठीक है कुछ इमोरलिटी हो भी सकती है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर कहीं कोई पैसा कमा रहा है तो उसके पीछे कुछ वैल्यू क्रिएशन भी है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू क्रिएशन. सो जब हम आज की डेट में इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें ये सोल्यूशन नहीं निकालना कि यार उठा के अंबानी को उठा के गरीब कर दो, या उठा के आप बायजूस को उठा के कह दो कि यार तू तेरा सब कुछ अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. हमें क्या करना है, हमें जो नीचे जो लोग हैं इस पिरामिड में उनको हेल्प करनी है. ठीक है, उनके हाथ में पैसा, उनके हाथ में एम्प्लॉयमेंट, उनके हाथ में कैपेबिलिटी अप्रोच के जो मर्द सैन के उनको कैपेबल बनाना है, रादर दैन ब्रिंगिंग दीज मैन डाउन. That should not be the approach, which was basically the approach in late 60s and early 70s. इस पीरियड में इंडिया का जो इनकम टैक्स रेट था was at times around 97%. दैट मीन्स अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो 97,000 रुपीज़ सरकार ले जाएगी, 3,000 रुपये के चने मेरे हाथ में आ जाएंगे कि भैया जो करना है पार्टी कर लो 3,000 रुपये का. So and that is why this extreme high income tax and very high rates of direct and indirect tax led to what is called as the black economy. Black economy का generation यहीं से होता है. Black economy is nothing, काला धन जिसको हम बोलते हैं, it is basically nothing but money which is not accounted formally. ठीक है, टू बेसिकली अवॉइड टैक्स, एनी काइंड ऑफ टैक्सेस ऑन टैक्स नेट. ठीक है, टैक्स एवेजन वाला जो मनी है. तो जब भी आपका टैक्स रेट हाई होगा तो आपके कंट्री के अंदर ब्लैक मनी जनरेशन होगा. ठीक है, अगर आपके टैक्स रेट्स लो होंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी कंट्री लाइक दुबई जो सिर्फ 5% टैक्स लगाती है, तो वहाँ पर कोई और उनके वैसे ही लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ पर आपके पास ज़्यादा कोई इंसेंटिव नहीं है कि आप पैसा छुपाओ, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे ही बहुत लाइटली टैक्स कर रही है. और अगर आप वो लाइटली टैक्स भी नहीं पे करोगे तो आपके ऊपर फिर वेरी हैवी पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड ऑन यू. तो इंडिया में हम टैक्स, एक तो हम टैक्स टेररिज्म भी बहुत करते हैं. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू दैट, बट जस्ट रीड अबाउट दिस गाइस. ठीक है, जस्ट रीड अबाउट टैक्स टेररिज्म. ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज करती हैं. एंड वेन एवर यू हैव टाइम रीड अबाउट व्हाट द काइंड ऑफ दिस थिंग. हमारा वो कौन सी कंपनी है, क्रेन के साथ, इंडिया वर्सेस क्रेन के साथ क्या इश्यूज हैं. तो बेसिकली हमने कुछ टैक्स डिस्प्यूट था इंडिया की गवर्नमेंट के बीच में और ये क्रेन जो कंपनी है इसके बीच में, और हम वो टैक्स डिस्प्यूट हार गए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर, और हमें इनको आई थिंक $2-3 बिलियन देने हैं. अब हम उनको दे नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं यार, हम इंडिया इज सुपीरियर, हम पैसा नहीं देंगे, हम इस आर्बिट्रेशन को नहीं मानते. सिंगापुर में आर्बिट्रेशन हुई थी, हम उसका अवार्ड नहीं मानते, हम सुपीरियर हैं, हम इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन हैं. तो अब इस क्रेन कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रही है,
इसने अलग अलग कंट्रीज़ को जाके बोलना शुरू कर दिया है जहाँ पर ये ऑपरेट करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को ने हमें पैसा देना है, जो इनकी प्रॉपर्टी है वो हम हड़प रहे हैं, वो हम ले लेंगे, छीन लेंगे। तो रिसेंटली आई थिंक इन पेरिस या इटली कहीं पे किसी यूरोपियन कंट्री में इंडिया के जो सेकंड वो थे या फर्स्ट एम्बेसडर का जो घर था वो इन्होंने अपने नाम कर मतलब उसको बेसिकली इन्होंने कैप्चर कर लिया है। ठीक है, तो अब इंडिया इधर उधर देख रही है कि कहाँ कहाँ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर ये कब्जा कर सकती है। तो ये तरीके का हम हमारा प्रोसेस चल रहा है आज की डेट में। तो रीड अबाउट दिस इज। और ऐसे ही एक देवास करके कंपनी है, उसको भी हमें $1-2 बिलियन देने हैं। ठीक है, बट उसको भी हम पैसा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो टैक्स टेररिज्म के बारे में यू कैन रीड अबाउट इट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे टेरराइज करती है, आज की डेट में भी करती है। ठीक है, और हमें ये मेजर रिफॉर्म्स करने चाहिए क्योंकि ये जो है ये इंडिया का डूइंग बिजनेस इंडेक्स को नीचे लेके आता है। तो यहाँ तक हमारा ये वो था। देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, टुडे वी आर गोइंग टू डील विद दिस पर्टिकुलर पूरा पीरियड जो है। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड आफ्टर 1980s वाज कि ये जो लेफ्ट पार्टीज थी, ये थोड़ा सा गलत है। तो बट अ लॉट ऑफ पार्टीज एक्चुअली गॉट इन टू पावर बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। बट इनिशियली क्या हुआ था, इनिशियली इंदिरा गांधी केम टू पावर एंड देन आफ्टर हर डेथ राजीव गांधी केम टू पावर एंड आफ्टर राजीव गांधीज डेथ दे वर अगेन 2 प्राइम मिनिस्टर्स। तो वो पॉलिटिकली इंस्टेबल पीरियड था 1989, 1990, 1991 वाला जो पीरियड था वो इंस्टेबल था पॉलिटिकली। देन इस पीरियड में वी सी कि एकदम से ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। 5.6% की ग्रोथ रेट है इन दी 80s एंड अंटिल 1992। ये आपको यहाँ पर दिख जाएगी 80 से 1992 इफ़ यू सी, ये देखो 5.2% की ग्रोथ रेट। ठीक है, सो ये यहाँ से हमें बेसिकली दिखता है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल ब्रेक आ रहा है। देयर इज अ स्ट्रक्चरल ब्रेक, जिसके बारे में हमने इकोनोमेट्रिक्स में ही बात करी थी। टू चेक इट वी यूज चाउ टेस्ट ना। तो यहाँ पर हमारा एक स्ट्रक्चरल ब्रेक आता है और इस स्ट्रक्चरल ब्रेक के बाद हमारी ग्रोथ रेट जो हो जाती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, एकदम से 5% प्लस पे आप ग्रो करना शुरू कर देते हो। देखो इस पीरियड के बाद से आप 5% प्लस पे ही ग्रो कर रहे हो आज तक। ठीक है, तो ये पीरियड डिफाइनिंग पीरियड है। बट ये जो हमने 1980s का जो पीरियड है ये सस्टेनेबल ग्रोथ का पीरियड नहीं था। ये जो पीरियड था ये सस्टेनेबल ग्रोथ का पीरियड नहीं था बिकॉज पहली बात ये जो ग्रोथ हुई थी ये स्क्यूड थी। ये ग्रोथ जो हुई थी ये पोस्ट 1985 हुई थी मेजरली ग्रोथ, और लास्ट के 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी। ठीक है, रादर दैन देखो आप बेसिकली आप ओवरऑल एवरेज कैसे हो सकता है, किसी क्लास का एवरेज ऐसे भी तो अच्छा हो सकता है कि 3-4 बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो एवरेज मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, तो तब भी आपका क्लास का एवरेज हो जाएगा ऊपर। और दूसरा हो सकता है कि सारे बच्चे ही कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं तो भी आपका एवरेज ऊपर होगा। तो यहाँ जो एवरेज अच्छा आया इस पूरे पीरियड का वो इसलिए आया क्योंकि पोस्ट 1985 स्पेशली बिटवीन 86 to 89 ग्रोथ रेट 1-2 साल बहुत ज़्यादा हाई था बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा हाई फिजिकल डेफिसिट, बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट कर रहे थे हम कंट्री के अंदर। सो दैट इज़ ऑल्सो विजिबल है। ये देखो इन्वेस्टमेंट रेट, कैन यू सी इन्वेस्टमेंट रेट एकदम से हमारा चेंज होके यहाँ पर 16% तक चल रहा है। एकदम से इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो बढ़ जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो जीडीपी को कैसे बढ़ाता। तो यू नीड टू नो द कंसेप्ट ऑफ ICOR जो मैंने शायद से पहले भी आपको बताया हुआ है, बट प्लीज़ नोट इट डाउन ये कंसेप्ट बहुत, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है विच यू शुड नो। यूजुअली इट्स डन व्हेन यू स्टार्ट विद योर हैरोड-ओमर मॉडल। अब ये इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो का क्या वो है, एज द वर्ड सजेस्ट, पहले कैपिटल आउटपुट मतलब कैपिटल अपॉन आउटपुट, और इंक्रीमेंटल वर्ड है तो इंक्रीमेंटल का मतलब चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन आउटपुट, और चेंज इन कैपिटल को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना हुआ, और चेंज इन आउटपुट इज बेसिकली जीडीपी में कितना ग्रोथ रेट हुआ, ये हमारा होता है। तो हम बेसिकली बोल रहे हैं कि अगर हम ICOR बेसिकली क्या होता है, इट्स अ रेशो विच टेल्स कि अगर मुझे 1% जीडीपी बढ़ाना है या फिर मुझे आउटपुट 1 यूनिट से बढ़ाना है तो मुझे कितना कैपिटल
इन्वेस्ट करना पड़ेगा. नाउ माई क्वेश्चन टू यू गाइज इज कि सपोज मतलब अगर मैं दो कंट्रीज़ ले लेता हूँ, सपोज पाकिस्तान लेता हूँ. पाकिस्तान का ICOR मान लो 5 है और इंडिया का ICOR मान लो 4 है. इंडिया का एक्चुअली ICOR 4 ही है. विच इज़ बेटर? ICOR बोल रहा है कि बॉस मुझे अगर 1 यूनिट आउटपुट का बढ़ाना है तो कैपिटल कितना चाहिए, ये ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा ये फिगर, कि कम होगा कि अच्छा होगा. लेसर द ICOR इज इट बेटर फॉर अ कंट्री और मोर ICOR इज बेटर फॉर द. श्रेया सेज लेसर, मानवी सेज लेसर, एनी सेज मोर. देखो गाइज लेसर ही बेटर होगा. क्यों? बेसिकली हम कह रहे हैं कि आपको आप बेसिकली कह रहे हो कि मुझे सपोज मुझे, मैं कहता हूँ कि मुझे एक कोई नया यूनिट बनाना है अपना, ठीक है, तो लेसर कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा एफिशिएंट हूँ. सो दिस इज बेसिकली टेलिंग यू अबाउट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. MEC भी सिमिलर कंसेप्ट है, ठीक है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस कंसेप्ट, दिस एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. तो ये एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर पढ़ने के लिए कोई आदमी हो सकता है कि एक चैप्टर पढ़ने के लिए कोई 3 घंटे लगा रहा है और एक चैप्टर पढ़ने के लिए हो सकता है कहीं कोई 20 मिनट में कर रहा है. तो सेम ही चीज़ है ना. मतलब आप एग्ज़ाम से पहले देखो आपकी एफिशिएंसी कितनी तेज़ हो जाती है. आप जब एग्ज़ाम देने से पहले एक रात पहले आप पूरा का पूरा सिलेबस एक दिन में कर लेते हो और उससे पहले आप पूरे 3 महीने खींचते रहते हो उसको. तो एकदम से आपका ICOR बढ़ जाता है, आपका ICOR एकदम से एफिशिएंट हो जाता है, आप 1 घंटे में ज़्यादा काम कर पा रहे हो. तो सेम है. तो ये 4 जो है इट्स बेटर दैन 5, ठीक है. तो सिमिलरली हम बोल रहे हैं कि अगर मेरा ICOR कंट्री का 4 है तो दैट मीन्स इंडिया को अगर GDP 1% से बढ़ाना है, 1% से इंक्रीज़ करना है, तो उसको इन्वेस्टमेंट जो है 4% से इंक्रीज़ करना पड़ेगा. दिस इज द रेशो, ठीक है. नाउ यू गिवन दिस यू कैन ईजिली फाइंड आउट. अगर आपको मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट रेट दूँ, ठीक है, दिस इन्वेस्टमेंट रेट इज बेसिकली कॉल्ड, कंट्री के अंदर इसको हम बोलते हैं GCF, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन. दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ GDP. तो अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया का GCF इज 28%, कैन यू टेल मी कि इंडिया का GDP ग्रोथ रेट कितना? इफ आई से दैट इंडिया का GCF इज 28% ऑफ GDP, एग्जैक्टली 7, तो बस आप इसको 4 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ गया 7% का ग्रोथ रेट है. तो बेसिकली आपके पास ये चीज़ 4 थी, ये गिवन है. आपको मैंने ये दे दिया कि ये 28% है, तो आपने बस इसको GDP को यहाँ ले गए, इसको नीचे ले गए, तो आपके पास आ गया 7% का ग्रोथ रेट हो गया, ठीक है. तो ये एक रफ एस्टिमेट है आपके पास कैलकुलेट करने का कि इंडिया का ग्रोथ रेट कितना होगा. तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जितनी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी आपकी गिवन योर ICOR उतनी ज़्यादा आपकी GDP होगी. तो हमारा इसीलिए ऑब्जेक्टिव होता है कंट्री के अंदर कि हम इन्वेस्टमेंट रेट को खींच पाएँ. हमारा हमेशा कंट्री में ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट रेट को GCF को खींच पाएँ, ठीक है. अब इन्वेस्टमेंट इन इट सेल्फ, ये हम नेक्स्ट सेमेस्टर में भी बात करेंगे गाइस, बट डू रिमेंबर दिस, इन्वेस्टमेंट बाय इट सेल्फ विल कम फ्रॉम सेविंग्स, ठीक है. तो या तो सेविंग्स से आएगा, या तो डोमेस्टिक सेविंग्स से आएगा, या फिर आपको बाहर से बोरो करना पड़ेगा, फॉरेन सोर्सेज से आएगा, फॉर एग्जांपल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है. तो हमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना अपनी कंट्री में, बट इन्वेस्टमेंट के पीछे जो साइकिल चल रही है वो सेविंग्स की साइकिल चल रही है. दैट मीन्स हमें किसी तरीके से सेविंग्स भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, या किसी तरीके से हमें सेविंग्स भी इंक्रीज करनी पड़ेंगी कंट्री में, सो दैट हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर पाए. और इन्वेस्टमेंट गिवन योर ICOR विल लीड टू GDP ग्रोथ रेट. समझ में आएगा, ये कंसेप्ट समझ में आया? इन्वेस्टमेंट का लिंक GDP से कैसे होता है? थ्रू ICOR. तो यहाँ देखो, यहाँ हम इस पीरियड में देखते हैं कि वी सी अ मेजर मूव इन इन्वेस्टमेंट. एकदम से हमें एक मेजर मूव मिलता है अगले 10 साल में इन्वेस्टमेंट में. बट ये जो इन्वेस्टमेंट कंट्री में हमने करी है ना गाइस, इस इन्वेस्टमेंट का जो कैरेक्टर है वो वही कैरेक्टर है जो मैंने शुरू में आपको मीम दिखाया था कि हमने बोरो कर करके इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, ठीक है. तो हमने जो अनसस्टेनेबली बोरो करा हुआ था अपने आप को. इट्स लाइक वही विजय माल्या वाली बात कि आपने दिखा तो दिया कि बॉस मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बट आपने ये सारा का सारा पैसा बोरो करा हुआ है, ठीक है. और वो आपका जो बोरोइंग है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो सेल्फ पेइंग नहीं है. तो यहाँ पर आपका इशू आना शुरू हो जाता है कंट्री के अंदर. तो ये इस पीरियड में आपने जो बोरोइंग करी थी, जो आपने फिस्कल डेफिसिट, आपने बेसिकली क्या करा, बोरो करा, दैट मीन्स फिस्कल डेफिसिट रन किया,
और फिस्कल डेफिसिट से आपने इन्वेस्टमेंट किया, बट दिस फिस्कल डेफिसिट और दिस इन्वेस्टमेंट वाज नॉट सस्टेनेबल बिकॉज आपकी कंट्री उतना ग्रोथ नहीं कर पा रही थी टू सस्टेन द अमाउंट ऑफ बोरोइंग दैट यू वर डूइंग. तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आया था इंडिया की ग्रोथ इस पीरियड में. तो बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ वी सी कि हमारा जो अप्रोच था वो यहाँ पर रिफॉर्मिस्ट अप्रोच ऑलरेडी शुरू हो चुका था. ठीक है, इंदिरा गांधी जब पावर लूज़ करके 1977 से 80 के बीच में शी वॉज नॉट इन पावर, जब वो वापस आई तो शी हैड अ रिफॉर्मिस्ट आइडिया कि उनको था कि अच्छा हमें इकोनॉमी को किसी तरीके से रिवाइव करना है. और जो कुछ रिफॉर्म्स करे थे वो कैसे थे, वो कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स नहीं थे, वो पीस मील रिफॉर्म्स थे. एक होता है ना फुल कोर्स मील क्या होता है कि आपको पहले एपिटाइज़र मिलता है, फिर आपको स्टार्टर्स मिलते हैं, फिर आपको मेन कोर्स मिलता है, फिर आपको डेजर्ट मिलता है. दैट्स कॉल्ड अ फुल कोर्स. बट यहाँ पर हमें पीस मील अप्रोच थी हमने कि हमने सीधा जाके मिठाई जाके सीधा खाया है. ठीक है, तो दैट्स काइंड ऑफ अ पीस मील अप्रोच. तो ये हमारी पीस मील अप्रोच थी. हमने इंडिविजुअल जाके चीज़ों को ठीक करना शुरू किया रादर देन पूरे सिस्टम को ठीक करने के बजाय. ठीक है, देन एडहॉक हमारे रिफॉर्म्स थे. कंप्लीट रिफॉर्म्स नहीं थे, परमानेंट रिफॉर्म्स नहीं थे. हमने कभी कुछ रिफॉर्म कर दिया, कभी थोड़ा सा रिफॉर्म कर दिया, उस तरह के रिफॉर्म थे. हमारे जो रिफॉर्म्स थे वो प्रो बिजनेस थे रादर देन प्रो मार्केट रिफॉर्म्स. ऐसा ही कुछ आज की डेट में हम अभी भी कर रहे हैं, प्रो बिजनेस रिफॉर्म्स कर रहे हैं. देयर इज द स्कीम कॉल्ड PLI स्कीम for exports. That PLI scheme actually reeks of a pro business approach rather than a pro market approach. तो आप बेसिकली चूज करते थे कि यार अच्छा तो ऑयल के बिजनेस से है, चलो तुझे मैं फ़ायदा देता हूँ. तो अच्छा तुम रिलायंस से हो, तुम्हें मैं फ़ायदा देता हूँ. तुम टाटा से हो, मैं तुम्हें फ़ायदा दे देता हूँ. रादर दैन एक मार्केट्स पूरे की पूरी मार्केट को आपने खुला छोड़ दिया कि अच्छा मार्केट अपने आप चूज करेगी कि विनर्स कौन है, लूजर्स कौन है. यहाँ पर यू आर प्लेइंग द हैंड वेयर यू आर डिसाइडिंग हु आर गोइंग टू बी द विनर्स. ठीक है, एंड एक्चुअली दिस वाज द टाइम व्हेन यू हैड the coming up of Dhirubhai Ambani, because he got a major fillip in this period from the political dispensation. So you watch the movie, you read the history of Dhirubhai Ambani, and I mean he was spectacular in the way that he carried himself. and इतने बड़े establishment, for example वो टाटास, बिरलास, बजाज के साथ वो लड़ रहे थे. एंड एक सिंगल, और ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी कंपनीज कौन सी हैं जो 50-50 100 साल पुरानी हैं. एंड हेयर वॉज अ मैन हु वाज वर्किंग एट अ पेट्रोल पंप इन दुबई इन सऊदी अरेबिया, एंड ही मेड हिमसेल्फ एज एंड ही अराइव्ड एट द इंडियन एंटरप्रेन्योरियल स्टेज एंड गेव टफ कॉम्पिटिशन टू ऑल दीज फैमिली डायनेस्टीज. So you have to see the remarkable turnaround in entrepreneurship which was brought about by Dhirubhai Ambani ji. Then इस पीरियड में एज आई टोल्ड यू कि हम बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट रन कर रहे थे. हमारा जो मेजर इन्वेस्टमेंट था वो डेफिसिट रनिंग की वजह से था. ठीक है, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा हाई था. तो हमारे ट्विन डेफिसिट्स इनको बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट जब वो साथ में होता है तो हम उसको बोलते हैं ट्विन डेफिसिट्स. तो ट्विन डेफिसिट्स हमारे बहुत ज़्यादा हाई थे. एंड ये जो पूरा ग्रोथ स्ट्रैटेजी था ये अनसस्टेनेबल था, इसीलिए इट लेड टू द क्राइसिस ऑफ 1991. तो हमारा क्राइसिस हो गया BOP के अंदर, जिसके पॉलिटिकल रीजंस भी थे विच वील टॉक अबाउट व्हेन वील टॉक अबाउट दिस पीरियड इन डिटेल. Then we see the period of 1996 to 1999 जो politically unstable था. और इस period के अंदर you had the crisis, the ASEAN crisis, जिसकी वजह से investment rate कम हो गए थे. गवर्नमेंट ऑफ RBI ने अपना इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बढ़ाया हुआ था, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हुआ. तो और पॉलिटिकली अनस्टेबल भी पीरियड था. प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन यू टॉक अबाउट अर्ली 2000s तो अगेन .com क्राइसिस चल रहा था, ड्रॉट आ गया था इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो तब भी आपका ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं था. तो इस पीरियड में ग्रोथ रेट जो है ये 6% नहीं होगा. अगर ओवरऑल पूरे पीरियड को देखो तो 6% का है, बट इस पीरियड में अराउंड 4.55% का ग्रोथ रेट है. तो ये जो थे पीरियड 1999 to 2004 ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का पीरियड था. One of the finest prime ministers that India had. One of the most important reforms were initiated by Atal Bihari Vajpayee ji, and only reforms ko they were taken over by UPA 1 and UPA 2 later on, and then we will talk about till NDA 1 ka starting.
ठीक है। तो ये हमारा बेसिक आर्किटेक्चर है इस पूरे पीरियड का। एंड इन योर नेक्स्ट क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस रिजीम फर्स्ट। ये जो हमारा एंशियंट रिजीम है फ्रॉम 1947 टिल 1980 के, वो हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल ऑल्सो, ये तो हम इकोनॉमिकली बात करेंगे, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द पॉलिटिकल फैक्टर्स इंडिया थ्रू 1970s, ठीक है। ये मैंने बेसिकली कौन कौन से एक्टर्स थे जो आ गए थे, बट इफ़ यू सी दिस लेज़र ऑन नहीं है ना, हाँ। सो इफ़ यू सी दिस, तो ये दिस वाज द कमिंग अप ऑफ इंदिरा गांधी इन 1966-67 when she took the reins of the Indian economy and political economy. And then 1976 tak again she was the Times person of the year again. And then later on by Morarji Desai and then by Charan Singh. So Morarji Desai was the prime minister between 1977 to 79 and Charan Singh was the prime minister between 1979-1980, ठीक है। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। देन इंदिरा गांधी की पीरियड में थोड़ा सा और डिटेल में वी विल टॉक अबाउट एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोरारजी देसाई एंड चरण सिंह, ठीक है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट दैट व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन दिस पीरियड बिफोर गोइंग ऑन टू 80s, ठीक है।